Very good morning. Good Good morning. morning. क्या होता है good morning सुबह सुबह? Good morning, Good teacher. morning. That's good. Well done. A very good morning, girls. So finally we are here and we have another guest speaker today. I'm sure you must have already read about her. She's already looking so gorgeous. दिख भी रही है यहाँ पे रेड मरून कलर के ड्रेस में मस्त सा ज्वेलरी डाल के हमें प्रॉपर टक्कर मेरे लिए, क्योंकि पूरी WHS के सेशंस में सिर्फ मैं अकेली रेडी होके बैठती हूँ यहाँ पे, तो मेरे टक्कर पे आज डॉक्टर पल्लवी आई हैं. शी इज एन अमेजिंग सोल. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट हर वंस इन पंजाब व्हेन आई हैड एन इवेंट देयर इन लुधियाना. एंड क्या वाइब आती है इनसे. शी इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन. एंड अगर आप मिलोगे इनसे तो आपको लगेगा हाय आज दिल खुश हो गया किसी से मिलके. ऐसी बंदी हैं. Thank एंड you. Thank you for हर this compliment. जर्नी mashallah is amazing. मतलब she's gone through such a turmoil in her life. उसके बाद में इतना नीचे गिर के जो खड़ी हो गई ना, ये मतलब तारीफे काबिल है. मुझे नहीं पता था ये वाली चीज पहले. बाद में मुझे I got to know her little more and I was like रिस्पेक्ट अलग लेवल में बढ़ गई इनके लिए मुझे. And I'm so happy that she is with us today, mashallah. And thank you so much, Dr. Pallavi. You took out your valuable time for us. आई नो हमारे वाले और सुनने की बाकी है, बट उसके पहले मैं थोड़ा पीपीटी दिखा लूं आप लोगों को. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम भी दे देंगे. उसके बाद में डॉक्टर पल्लवी इज गोइंग टू टेक यू ऑन हर जर्नी. सो गियर अप गाइस. अभी मैं शेयर कर रही हूँ अपना. मुझे बताना दिख रहा है क्या नहीं. दिख रहा है आप लोगों को? Yes. Yes. Good. Look at that. She can actually do modeling also. Amazing. Yeah. She looks. Look at that. So can we have a Thank you for this huge round of compliment. applause for Dr. Pallavi? Yes. Thank you so much, Thanks to Dr. you. Pallavi. Thanks to you. She is the director of Yogita Collection. She is also a social activist. She is a full-time entrepreneur, a mommy too. And I don't know कितने सारे labels हैं इनके नाम के आगे, बस endless है. It's just the determination and passion that she has, जिसकी वजह से वो labels उनके नाम के आगे सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं. Of course आगे की हमारे पास space की कमी पड़ी थी, तो हम लोगों ने सारे नहीं लिखे. उनका सिर्फ major profile लिखा है अभी तक. Although you'll get to know more about her now. So here, look at that achievement she's got. Dr. Pallavi Garg is a multitasker, an entrepreneur, author, social activist, motivational speaker, and a passionate writer. Pallavi's hometown is Pathankot. A brilliant student since her young age, and she completed her graduation from GNDU, Amritsar, Punjab. And she treasures her 2 children and devotedly tends to her in-laws clan. Pallavi believes that 21st century women have the power to create a niche for themselves. She is an indestructible believer of women empowerment. There's a lot more coming. Yes, Alia. Yeah, thank you, Aisha. Pallavi began her entrepreneur journey after the sad demise of her young husband due to COVID. The death of her husband was immediately followed by her father in law's demise. These critical incidences created a superstorm in their joyful joint family. She gathered up her strength and took charge of the family business along with her brother in law. Her main aim was to develop and prosper their business as well as resolve the hitches the family faced due to these sudden, sorrowful incidences. In spite of life's adversity, yet Pallavi's determination led her to achieve national and international fame. She is the proud recipient of Best Woman Entrepreneur National Award. MashaAllah. MashaAllah, that's too good. Here Pallavi is with her children, so beautiful, so charming children, MashaAllah, and here with her husband. Over to Radhia. Yes, thank you. Hello, Miss Pallavi. Here in the first photograph, she's with her in-laws. And the second one is with her family, mother and siblings. Hello, everyone. Pallavi's main engrossment towards social work easily allowed her to become the president of an NGO working for girls and women.
Her team has provided economical, social, and physical aid to these needy females. Currently, at the age of 30, Pallavi has taken on a passion for writing. She has drafted 2 solo magazines, Success and Entrepreneurship. In her own words, the best people are those who strive and never give up. God has given us one life. It's in our hand to do better. Keep shining always. Respect women. Amazing. And we'll show you a few more glimpses, and then we will hand it over to Dr. Pallavi. MashaAllah. Look at that. She is one unstoppable woman, and I want you all to give her a big round of applause, please. Thank you so much, Dr. Pallavi. It means a lot that you took out your time and you are here with us. And I can't wait to hear your story, because every session I learn a lot from you girls. And today, where I stand, I proudly give that credit to all the speakers who had come, because from every story, I've learned quite a thing, and that has made me strong and positive. And I'm very confident today as well, I would get to learn a lot along with me, our girls too. And over to you, Ms. Pallavi. थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू आयशा, जिन्होंने मुझे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी के साथ जोड़ा। और यस, जो मेरी जर्नी है ये एक मैं बोलना चाहूंगी, ये जो जर्नी है ये खुद भी नहीं कह सकती, ये खुद को स्ट्रॉन्ग करने वाली जर्नी थी। कि किसी को पता नहीं होता किसी के साथ क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूं तो चाइल्डहुड में भी मतलब एक्चुअली व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद मेरी मदर ने ही हमें तीनों सिबलिंग्स को हमें मतलब अच्छे से वेल एजुकेटेड किया, और साथ साथ में हमें ऐसे मतलब कहते हैं ना संस्कार ऐसे दिए कि हमें कभी किसी की नीड ही नहीं लगी। हमें ऐसे लगा ही नहीं कि हमें अपनी मदर में ही अपने फादर दिखते थे। तो हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रही। लेकिन जब मैरिज होती है किसी की तो कहते हैं ना एक वाइफ जो है थोड़ी सी हस्बैंड पे डिपेंड जरूर होती है। मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट थी, लेकिन मैरिज के बाद मैं जब अपने बच्चे होने लग होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, तो थोड़ा हस्बैंड के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। यहाँ फैमिली है हमारी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लेडी को पता होता है हमारा कंपेनियन हमारा साथी है जो हमें संभाल सकता है ना। तो वो एक साथ है, एक बॉन्ड जो है वो इतना अच्छा बन जाता है कि हम अपनी सारी, हमारा फ्रेंड हमारा कंपेनियन सब कुछ वही दिखता है हमें। तो हम अपनी सारी जो कहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लेके हमारी जो मन की बातें हैं वो भी हम उनसे शेयर करते हैं। लेकिन ये कुछ पता नहीं होता टाइम का, किस टाइम पे क्या चीज होनी है। तो वो टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा आया। लेकिन यस, उस टाइम पे मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा, अपनी फैमिली के साथ रही और फैमिली को और ज्यादा बिल्डअप किया, उनको और ज्यादा इंकरेज किया कि नहीं, अगर ऐसा हो गया है हमारे साथ, इट नॉट मीन्स कि हमारी खुद से जर्नी यहीं पे स्टॉप हो गई है। हमें और आगे करना है, हमें अपने बच्चों को देखना है, हमें अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना है। तो दैट्स वाई मैंने उसी टाइम सेकेंड डे में ही डिस्कस कर लिया था कि यस, मुझे अपना बिजनेस ज्वाइन करना है और जाना है। इवन मुझे यहाँ पे इस बिजनेस के बारे में इतना कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन नॉलेज था तो खुद अपनी पढ़ाई पे अपना खुद की इंडिपेंडेंट थी, खुद को लेके अपने वर्क को, अपने वर्क प्लेस को, जैसे हम घर पे हर एक चीज को होम मेकर्स मैनेज करती हैं। आपका मेन टाइटल जो है वी मेक होम मेकर्स, तो हम लोग होम मेकर्स हैं। हम जैसे अपने टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से हम अपना टाइम मैनेजमेंट करती हैं, हम अपने बच्चों को, हम अपने काम को, हम किस तरह से उसको मेंटेन करती हैं। तो दैट्स वाई मेरे को भी यही था कि मुझे बिजनेस और ये दोनों चीजें मेंटेन करके रखनी है, मुझे उसमें इन्वॉल्व होना है अपने बच्चों के लिए। चाहे वो एक ज्वाइंट बिजनेस था, लेकिन ये था कि खुद का एक स्टैंड लेना जरूरी है। तो स्टार्टिंग के डेज में 6 ऑफ द मंथ जो स्टार्टिंग के थे उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में समझ भी नहीं आता, समझ था भी लेकिन इतना डीपली नहीं था। जो थे वो हमारी फैमिली में, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ है, वो मेरे से मच मोर बेटर, जैसे हम कहते हैं ना, वो तो बिजनेस में ही पहले ही इन्वॉल्व थे। तो उनसे ही मुझे और ज्यादा मतलब नॉलेज मिला। हमारी जो टीम है, जो अपनी कंपनी में जो टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव थे, उनसे सब नॉलेज मिला। लेकिन हाँ यस, अब मुझे इतना मैं अपना सारा बिजनेस खुद
हैंडल कर सकती हूँ, खुद की मतलब इतनी नॉलेज हो गई है कि खुद से भी एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकती हूँ। Wow. तो आफ्टर ऑफ दैट 6 मंथ तो लगते ही हैं हर एक को अपनी सिचुएशन से बाहर निकले में। 6 मंथ क्या, मैं कहती हूँ, मैं उस टाइम पे मतलब लोगों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे पता है मेरे खुद के रिलेटिव्स ने भी मुझे बात कही है, बट मेरे मुंह पे नहीं कोई बोला, क्योंकि मैं उन डेज पे भी कहते हैं ना कि अब वो टाइम को याद करते हैं, तो वो टाइम को याद करते करके ना हम लोगों को बैड फीलिंग्स तो अभी भी आती है, सबको आएगी। जब उसका बैड टाइम फेस याद करता है तो सबको फीलिंग आएगी। लेकिन यस, मैं इतना स्ट्रांगली कहती हूँ कि उस टाइम पे मैं इतनी स्ट्रांग रही कि मैं रोई नहीं किसी के आगे। मैंने किसी को शो नहीं करा कि हाँ मुझे क्या फीलिंग है, सॉरी टू से। बट Yeah, ये that's अभी good. सब ऑल सेट, और सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। बाकी जो मेरा जर्नी है वो बहुत अच्छे से जा रहा है। जो जो भी मैं जिस भी एडिशन की है मैंने अपने में खुद की अपने पैशंस में आगे और ज्यादा पैशनेट हुई हूँ अपने वर्क को लेके, वो बहुत अच्छे से जा रहा है। और मेरे इस पैशन की वजह से, मेरे इस वर्क की वजह से, मेरे अपने खुद के काम की वजह से और खुद स्टैंड लेने की वजह से मेरी फैमिली मेंबर्स, मेरे इन लॉज फैमिलीज, दूसरी मेरी खुद की फैमिली बहुत खुश है। यस, मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कर रही हूँ। इवन मेरी फ्रेंड सर्कल में भी बहुत ही अच्छा सर्कल है मेरा फ्रेंड सर्कल भी। और वो सारे भी मुझे मतलब प्रेयर्स के साथ साथ वो सारे भी मुझे, मैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन स्पीकर बन गई हूँ। अगर किसी को कोई चीज की, या किसी को किसी चीज के बारे में, या खुद लगता है कि हमें कोई फैमिली इशू है, हम किस तरह से उसको डील करें, या हम बच्चों को लेके कैसे डील करें, तो देन शी ऑल्सो मेरे पास आएंगे। शी ऑल्सो सिटिंग विद मी एंड प्लीज गाइड मी, शी टेल मी प्लीज गाइड मी। तो मुझे बहुत एक अच्छी इंस्पिरेशन, मतलब खुद को लगता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया है, कि यस तो ही हमारे पास कोई आ रहा है और कोई हमें पूछ रहा है। तो दैट्स अमेजिंग फीलिंग फॉर विद मी, कि मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आती है उस टाइम कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है। आफ्टर ऑफ दैट, कि मैं अगर ऐसे रही हूँ, अगर किसी के लिए अगर गलत भी हूँ, देखिए कई लोग होते हैं बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, कई फैमिलीज होती है ना जैसे बहुत कंजर्वेटिव होती हैं कि हाँ इसका तो हस्बैंड रहा नहीं और ये 1 महीने के बाद ही बाहर निकल रही है। मतलब ऐसे ऐसे व्यूज भी मिले हुए हैं। बट किसी को नहीं पता किसी के साथ क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता कि किसी की स्माइल के पीछे क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता। बस ये है कि उस टाइम पे मेरे जैसा पर्सन यही सोचता है कि चुप रहिए और अपना काम करते रहिए। जब हम अब खुद, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यही था कि मैं खुद जब अचीव करूंगी कुछ और खुद एक बड़े मुकाम पे पहुंचूंगी, तब यही लोग मुझे और प्रेज करेंगे और शॉक्ड होके सोचेंगे कि हमने तो ऐसा सोचा था, ये तो ऐसा निकला। बस उनके मुंह पे मेरी तरफ से एक करारा जवाब यही है, इतने साल के एक्सपीरियंस से या इतने साल की जर्नी से जो भी मैंने लिया है, तो मेरी ओर से उनकी और मेरी तरफ से उनके लिए एक यही जवाब है कि जो मैं यहाँ पे जिस टाइम पे इस टाइम पे जो स्टैंड हूँ और जो मैंने अचीव किए हैं, अपने जितने भी मैंने अवार्ड्स लिए हैं या मैंने अचीवमेंट्स जितनी भी ली हैं, ये उनके लिए एक है कि वो एक मेरे लिए एक वाव फैक्टर है। मैं खुद को भी कहती हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है तो मैंने बहुत कुछ खोया है। अगर मैंने ये सब कुछ अचीव किया है तो मुझे पता है कि मैंने अपनी जर्नी में अपने बच्चों का साथ खोया है, उनका एक एक पल खोया है। क्योंकि किसी भी मदर को अच्छा नहीं लगता कि जब वो अपने बच्चे को छोड़ के जाती है। किसी भी मदर को अच्छा नहीं लगेगा जब वो अपने बच्चे को, 2 साल के बच्चे को छोड़ के जाए। बट मैंने ये सब कुछ किया है। और मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को मेरे बच्चे को स्पीच डिले के प्रॉब्लम रहा है, वो भी इसी वजह से क्योंकि मैं उसके साथ ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाई। बट यह सब भी वो ठीक हो चुका है अभी। उसमें बहुत मतलब जितना उसमें प्रॉब्लम था वो बहुत रिकवर हो चुका है। क्योंकि अब मैं उसको बहुत, क्योंकि अब मुझे भी लगता है कि हाँ मैं मेंटेन तो उस टाइम पे मैंने बहुत किया, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि हाँ मैंने अब वो चीज
अचीव कर ली, अब मुझे अपने बच्चों की तरफ देखना है। जो उस पे मैं ये प्रॉब्लम मुझे फेस मेरे को शो हुई है 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर में मुझे ये प्रॉब्लम शो हुई है कि मैंने उसकी तरफ ये चीज देखी नहीं, या मैंने बहुत जल्दी स्टार्टअप ले लिया, जो कि मैं सोचती थी कि वो स्टार्टअप लेना उस टाइम बहुत जरूरी था। और मैं कहती हूँ जो भी जिसके साथ भी ऐसा हो, उसको कभी भी, मैं इसीलिए सबको अपने किसी भी मोटिवेशन सेशन में, या मैं कहीं जाऊं जहां मुझे कोई गेस्ट स्पीकर बुलाए, या कहीं भी मोटिवेशन सेशन में मैं ये जरूर बोलती हूँ कि लाइफ जो है वो सबको एक ही बार मिलती है। और हमें पता है हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, हमारी फैमिली के मेंबर्स, हमारे खुद के बच्चे, वो हमारी ही फैमिली हैं। हमें पता है हमने उनको किस तरह से बिल्ड करना है, हमें उनको क्या शिक्षा देनी है और किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, ये सब हम हमारे ऊपर है। और अगर हम उस टाइम पे पीछे हट जाएं और हम लोग सोचें कि हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, अगर ये चीज सोचते रहेंगे तो आगे लाइफ नहीं चलेगी। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें खुद आगे कदम लेने पड़ेंगे। जब तक हम आगे कदम नहीं लेंगे तब तक पूरी लाइफ ऐसे ही है। और लोगों को क्या है, लोगों के लिए आज भी हम लोग बातों के लिए हैं और कल भी थे, और आगे भी पता नहीं बातों के लिए रहेंगे। लेकिन उनको नहीं पता कि हमने अपनी लाइफ किस तरह से चलानी है। उनको नहीं पता हम क्या फेस कर रहे हैं, उनको नहीं पता हमारे अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर कोई बता नहीं रहा, इट नॉट मीन्स कि आप उसके बारे में कुछ भी बोली जाएंगे। तो मैं सबको यही, सारी लेडीज को, चाहे वो होम मेकर्स हैं, चाहे वो वर्किंग में भी हैं, वर्किंग वाली लेडीज बोलती हैं हम इतने आज काम करके जाते हैं, उनका भी एक इशू होता है। मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं वो वर्किंग हैं, उनको भी ये होता है कि हाँ हम बच्चों को, मेन स्पेशली वर्किंग में यही आता है, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हम जब घर जाते हैं ना, बच्चे ऐसा फील करते हैं हाँ बस हमें मम्मा चाहिए अब। खासकर मदर्स के साथ ये चीज होती होती है, जो वर्किंग होती है ना, उनको यही होता है जब वर्क प्लेस से वो घर आती है ना, तो बच्चों को क्या होता है कि हाँ मदर आ गई, अब आप यहाँ से हमारे हमारे पास ही बैठोगे और कहीं नहीं जाओगे। तो वो जो फीलिंग होती है ना, तो वो मैं बता नहीं सकती वो कैसी होती है। कि हाँ उस टाइम हमें भी लगता है कि हाँ हम इसको चाहे 1 घंटा प्यार करें, चाहे ऐसे ही बैठे रहे उसके साथ, कि हाँ बस ऐसे ही बैठे रहे, उसको पैम्पर करते रहे हर एक चीज को लेके। स्पेशली ये छोटे बच्चे ऐसा करते हैं कि हाँ आप मेरे पास ही बैठे रहो। तो मेरा छोटू भी ऐसा ही है, वो भी ऐसे ही करेगा। अब रिसेंटली क्या हो रहा है हमारे घर में, जैसे ज्वाइंट फैमिली है, तो कजन सिस्टर्स हैं उनके, तो वो जो छोटू है हमारा, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ का छोटा बेटा, तो वो और ये दोनों में 1 ईयर का डिफरेंस है। तो वो जब भी स्कूल से आता है तो उसको होता है कि उसको तो मदर मिल रही है, मेरी मदर नहीं आई। तो अब मैं वो चीज कवर अप करती हूँ। जब उसके आने का टाइम होता है तो मुझे होता है चाहे 10 मिनट्स का गैप पड़े, लेकिन मुझे घर होना है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे को ये चीज ना लगे। पहले तो वो बहुत छोटा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, बोलता नहीं था, अब वो सब बोलता है, सब बताता है। तो वो खुद को एक ना अच्छी फीलिंग नहीं आती कि हाँ हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे। बस अब यही है कि अभी उनको टाइम देना है। अभी उनके लिए ये जर्नी है, जितना भी एक सक्सेस किया है या जितना भी करा है, वो एक आपको मैंने सारी अपनी जर्नी बता दी, किस तरह से क्या क्या हुआ सारा कुछ बता दिया मैंने। लेकिन ये यही है, जो भी है कहते हैं ना एक खुली किताब है, तो ऐसे ही किताब है मेरी कि सब कुछ इसी पे है, जो मैंने बता दिया सारा कुछ मैंने बयां कर दिया, सब कुछ यही है। सो डॉक्टर पल्लवी, लाइक आई डोंट नो, गूज बम्स आते हैं ये सुन के ऐसे। और मुझे ये पूछना था, लाइक सो बेसिकली आई हैव सीन मेरी फैमिलीज में भी ऐसे हुआ है, लेकिन वहां पे इन लॉज जो हैं वो डिसोन कर देते हैं काफी बार यस ऐसे। तो इन योर केस ये आपका उल्टा हुआ है, इन लॉज आपके बहुत सपोर्टिव थे एंड यू आर स्टिल विथ योर इन लॉज, राइट? यस यस। हाँ, तो फिर उनका सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? लाइक व्हेन दिस इज हैपनिंग, लाइक बेटा ही नहीं है लेकिन बहू से क्या, लेकिन ये आपके पूरे इन लॉज ही डिफरेंट है, बीन सो अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया एंड बीन सपोर्टिंग यू, यू आर मैनेजिंग द होल कंपनी नाउ। तो वो कैसा रहा? मैं आयशा स्टार्टिंग में बताऊं अगर तो मेरे फादर इन लॉ थे जब, तो जब हम मैं वैसे ही चलो कहते हैं ना एक हमारा तो अभी एक ग्रुप जो है वो ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप ही मैं मानूंगी इसको। मैं ये नहीं मानूंगी कि मैं यहाँ पे एक स्पीकर की तरह से आई हूँ, मैं फ्रेंड्स ही मानूंगी सबको। तो आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मैं फ्रैंकली बताऊं तो जब मेरी शादी हुई थी
तब एक्चुअली मैंने अपने यहाँ पे अपने पीपीटी में भी आपको बताया, अपने रिटर्न में, राइटअप में, कि मेरी बहुत अर्लियर शादी हो गई थी। तो जब मेरी शादी हुई थी तो ऑन दैट टाइम आई वाज जस्ट 19, मैं 19 ईयर की थी, एंड मेरे हस्बैंड 23 के थे। तो हम कह लो कि एक उनके लिए एक बच्चे, वैसे भी हर एक माँ बाप के लिए किसी भी एज में हर एक बच्चा बच्चा ही रहता है, तो उनके लिए हम बच्चे ही थे। तो वो मुझे, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ, हमने तीनों ने जाना, जब भी जाना कहीं भी आफ्टर ऑफ मैरिज भी हम इकट्ठे ही जाते थे। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। इवन मेरी ब्रदर इन लॉ के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी शुरू से ही। तो मेरे फादर इन लॉ बहुत बार बोलते थे, ये हमारा फोन कट कर देता, तेरा फोन नहीं कट करता। मतलब अगर मैं, मेरे को कुछ चाहिए ना घर से, तो मैं उसको बोल देना कि मुझे भैया चाहिए, अगर मैं फोन भी करा ना, तो उसने मेरा फोन नहीं कट करना कभी भी। तो फादर का, ब्रदर का, सबका फोन कट कर देना उसने उसने कभी, मतलब कहते हैं ना एक बड़ों के नाते एक वो होता है, और उसको ये लगता था कि आप ही मेरी बात समझते हो और घर पे कोई मेरी बात नहीं समझता। तो वो शुरू से ऐसा था। वो कभी फोन, मतलब मेरे को कोई भी चीज चाहिए होती, इवन रात के 12:30 12 बजे तक भी कुछ चाहिए होता ना, अगर मेरे हस्बैंड भी मना कर देते वो लेके आता था मेरे लिए। तो वो मतलब एक ऐसा बॉन्ड शुरू से ही था, तो मैं उसको शुरू से अपना ब्रदर ही मानती थी। तो मैंने, मतलब अभी भी रिसेंटली मैं उसको, आफ्टर ऑफ दैट मैंने इनके टाइम ही, मतलब अपने हस्बैंड के टाइम ही, कोविड से पहले ही उसको राखी बांधना शुरू कर दिया था कि आप मेरे ब्रदर ही हो। तो मतलब ऐसी बॉन्डिंग हमारी शुरू से थी। और घर पे अगर घर का देखा जाए तो हम, मेरी जो मदर इन लॉ है वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, इतने मतलब सॉफ्ट हार्टेड और सॉफ्ट नेचर के हैं, मैं बता नहीं सकती कि उनको कभी भी हमसे कभी शिकायत नहीं हुई, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ है, देवरानी है, उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। इवन बच्चों को लेके भी कई बार, मैं बता नहीं सकती, वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशंस हैं एज अ मदर। हमारी मम्मी कई बार बोल देती थी हमें शादी से पहले भी कि कुछ सीख लो, अगर तुम ससुराल जाओगी तो तुम क्या करोगी, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता। तो बोलती हैं, हर एक की मम्मी बोलती है ना, तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, तू अपने घर जाएगी क्या करेगी। तो मैंने कहती थी टाइम आएगा तो देखेंगे। मतलब हमारा जवाब उस टाइम ही, अभी हम छोटे हैं, आप हमें ऐसे सुनाई जा रहे हो, टाइम आएगा तो देखेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। तो मैरिज बहुत जल्दी होगी, पढ़ते पढ़ते ही मैरिज होगी, कुछ नहीं आता था, मतलब किचन का ए भी नहीं आता था, जेड तक तो दूर की बात है। तो मतलब मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सब सिखाया। हाँ, मुझे ये था, छोटे छोटे काम जरूर आते थे, लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने हमारी फैमिली में कुक कहते थे कि रख लो, मेड रख लो, लेकिन खाना खुद ही बनाना है। मतलब लेडीज ही बनाएंगी, घर की लेडीज अगर किचन में है तो ही लेडी गिनी जाती है, मतलब ये टैगलाइन होता था। तो हम लोग हेल्पिंग के लिए जरूर किसी ना किसी को रखते थे, लेकिन खाना खुद ही बनाते थे। तो मेरी मदर इन लॉ ने वन ईयर आफ्टर ऑफ दैट, मेरी मैरिज के बाद 1 साल खुद ही खाना बनाया। उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम किचन में आओ, तुम खाना बनाओ। हाँ, ये जरूर कहते थे, खा साथ में खड़ी हो जा, देख जरूर कैसे बनता है, अभी तू देखेगी कल को तू बनाएगी। मतलब एक मदर का जो होता है ना, जैसे मदर सिखाती है एक एक चीज, वैसे सिखाते थे शुरू से। तो मैंने उनसे ही सब कुछ सीखा। हाँ, जो चाइनीज कॉन्टिनेंटल फूड्स होते थे वो कहते थे ये मेरे परे से बाहर है, ये तुम खुद ही करो। तो हम लोग वो नेट से देख देख के हम लोग सीखते थे। तो मतलब उन्होंने शुरू से सपोर्ट करा। इवन पापा हमें कई बार, मेरे फादर इन लॉ ना, कई बार कोई बात होनी तो उन्होंने कई बार बात कर देनी, ये तू ही गजाया हुआ है, मतलब पंजाबी में तू ही गजाया हुआ है। तूने ही इसको, इन दोनों को सिरे चढ़ाया हुआ है, तू कुछ करने नहीं देती, वो भी नहीं कुछ करती। तो मम्मी बोलते थे कोई बात नहीं, तो की हो गया, ते साडे सिरे है, साडे बच्चे है, साडे सिरे ऐश करते पे है। पंजाबी में। तो मतलब शुरू से हमारे घर का बॉन्डिंग बहुत हैप्पीली था, मतलब ऐसा था, सारे ऐसे एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते थे कि हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ ही हैं, और जो भी काम करना है इवन पूछ के करना है बड़ों से कि हाँ ये ठीक है, डिस्कशंस करके करनी है कभी भी। इवन फैक्ट्री की बात भी है, कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ऑफिशियल प्लेसेस पे ही हम ऑफिस का बात करेंगे। हमारे घर में ऐसा होता था, जॉइंट बिजनेस था, ऐसे खुले बात होती थी, इसीलिए मुझे थोड़ी नॉलेज रहती है। इसीलिए उन टाइम्स के अंदर अगर मैं बोलूं कि मैंने इतनी जल्दी वहां पे सब कुछ सीख लिया, वो यही रीजन था कि मेरे हस्बैंड ने, कोई भी बात होती थी, अगर फैक्ट्री की, अगर कंपनी में कोई भी बात होती थी, जैसे उनका मेन, उनको ये 3 जन थे, मतलब हमारे ज्वाइंट बिजनेस में मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड,
3 लोग थे जो इसको संभाल रहे थे, लेकिन सबको पापा ने, मतलब मेरे फादर इन्होंने सब दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया था और वो खुद मैनेज करते थे। दैट इज द डायरेक्टर। वो डायरेक्टर थे उस टाइम पे और वो मैनेज करते थे। और मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ था। मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ मार्केटिंग करते थे उस टाइम, मार्केट संभालते थे सारी, और बैंक का मार्केटिंग और विद बैंक, मार्केटिंग विद बैंक, वो 2 चीजें संभालते थे। और मेरे हस्बैंड इन अंदर का जितना भी मशीनरी वर्क था, उनको मशीनरी का सारा नॉलेज था। मतलब एक भी पार्ट, अगर एक भी सुई कह लीजिए ना वहां पे गुम हो गई है, तो वो कहाँ से आनी है, हर एक बंदे का ये रेट, उसका ये रेट है, उसका ये रेट है, उसका ये रेट है। यहाँ मतलब उनको ये सारा इंजीनियरिंग वर्क का उनको सारा नॉलेज था। प्रैक्टिकली उन्होंने शुरू से ही करा हुआ था सारा, तो वो सारा नॉलेज उनके पास था। तो वो अगर उसके साथ साथ तो हमारा डाइंग का बिजनेस है, और सारे जितने भी हम लोग कहते हैं ऑफिसर्स होते हैं, जैसे हम लोग कह लीजिए कोई पुलिस में है या उनसे बात करनी है, जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ था उनका उठना बैठना, मतलब उनके साथ ही वो रहते थे। तो उनसे भी उन्होंने मुझे मिलवाया हुआ था। मतलब मैं बात ये नहीं करना चाहती, कहते हैं ना एक हस्बैंड का सपोर्ट होता है, लेकिन कई घर वाले क्या होते हैं कि लेडीज हैं, शादी करके आई हैं लड़कियां, तो घर पे ही रहे, अपने ससुराल वाले इंटरफेरेंस नहीं करने देते। मेरे फादर इन लॉ शुरू से ऐसे नहीं थे। अगर घर पे कोई बात करनी अपने बेटों के सामने, हमने हमारे सामने डांट देते थे और हम हंसते थे। मतलब वो अपने बेटों को डांट रहे हैं और हम हंस रहे हैं कि अच्छी बात, आपको डांट पड़ रही है। तो हमारा ऐसा था, मतलब शुरू से ही ऐसा हैप्पीली इन्वायरमेंट रहता था। तो ये ऊपर से पापा लोग इनको डांट रहे हैं और हम अंदर से हंस रहे हैं, और हम कह रहे हैं पापा इन्होंने ऐसे भी करा, हम और डांट खिला रहे हैं। हम और खुद भी अपनी बातों में भी डांट खिला रहे हैं। ये बच्चों का भी काम नहीं करते, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, हम फिर डांट खिला रहे हैं। मतलब ऐसा ही रहता था। पर उन्होंने कभी भी, चाहे मेरे फादर इन लॉ कह लीजिए चाहे मेरे हस्बैंड कह लीजिए, उन्होंने हमेशा, मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ तक बोला था उस टाइम पे भी, अगर आपने बीच में आना है आप आ सकते हो, मतलब आप अपना कौन कहता है आपको काम ना करो, उनकी वर्डिंग ये होती थी, आप अपना अकाउंट्स देखो, आप अपने काम में इन्वॉल्व हो सकते हो, जाके देखा करो संडे संडे सैटरडे, नहीं पूरे दिन जा सकते बच्चों की वजह से तो वीकली में 2 डेज निकालिए। मतलब वो उस टाइम भी बोलते थे। और मेरे हस्बैंड बोलते थे, ले तेरे को जाने की क्या जरूरत है, मैं जा रहा हूँ ना, मतलब मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरी बात तेरे से होती है, तेरे को जाने की क्या जरूरत है। बट ये है कि हमें बात पता लगती रहती थी कि क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा, कैसा सिस्टम चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा। कई होते हैं, कई लेडीज पे भी डिपेंड करता है, कई लोग शुरू से, कई लेडीज क्या करती हैं शुरू से इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती, उनको होता है हमारे हस्बैंड कर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ना। तो हम लोग, मेरा शुरू से नेचर ऐसा था कि मैं और जानने की कोशिश करती थी, मैं और जानने की कोशिश करती थी कि हाँ आप यहाँ पे जा रहे हो, उन्होंने आपसे क्या बात करा, आप क्या डील करके आए हो। मतलब छोटी छोटी से भी से बड़ी बात और निकल जाने की, उन्होंने मेरे से, उनको ये होने लग गया था मेरे हस्बैंड को कि ये इंटरेस्ट ले रही है, तो वो और बताते थे ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो मुझे उन चीजों में शुरू से इंटरेस्ट था। और मेरे फादर इन लॉ ने कभी नहीं मतलब हमें बोला, आप पहले भी बोलते थे जाओ, बाद में तो चलो ये बात हो गई, तो इसलिए वो शुरू से ही ऐसे कोऑपरेटिव थे, Amazing, कभी amazing. इशू नहीं आया। हमारा तो That's unique. इससे भी ज्यादा ज्वाइंट बिजनेस पहले भी था, मतलब पापा के भी भाई भी साथ में थे, वो भी हमारे बाद में, मेरी शादी के बाद ही अलग हुए थे। तो वो भी और ज्यादा सपोर्टिव है, मतलब अकेले फादर की बात नहीं कर रही, वो भी मेरे लिए फादर इन लॉ ही है। उन्हीं की पिक्चर मैंने आपको अपने साथ भेजी हुई है, जो मेरे इन लॉज फैमिली में है वो भी है साथ में। तो वो और ज्यादा सपोर्टिव थे। मतलब पापा ने एकदम से ख्याल नहीं करा जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो क्योंकि वो अपने बच्चे के शौक में बैठे हुए थे। एक तो उनको खुद से, एक्चुअली उनको खुद से हेल्थ इश्यूज थे, प्रॉब्लम थी, वो खुद भी उन टाइम पे ना खुद भी ठीक नहीं थे। वो तो उसी के गम में बैठे हुए थे कि मेरे मेरे बच्चे के साथ या उसकी फैमिली को मैं कैसे देखूंगा, उसके बच्चे इतने छोटे हैं, तो इसी गम में बैठे थे। लेकिन सेकेंड ऑफ द डे मेरे दूसरे, मतलब चाचा ससुर जिनको हम बोलते हैं, उन्होंने बोला पापा को कि हमने बेटी को ऐसे नहीं बिठाना। उसने बोला मैं बेटी से बेटा बन के दिखाऊंगी आपको, लेकिन ये बेटा आपको बनाना है, आपको ऐसे ही बनाना है कि आप उसको हर एक जगह पे अपने साथ रखो, और जहां पे आप अपने बेटे को स्थान देते थे ना वहां पे उसको दो। मतलब ये चीज उनको कहने की देर है, पापा तो पहले ही तैयार थे। उन्होंने मेरे को थर्ड डे पूछा, तुम फैक्ट्री जाओगी?
तेरा क्या मानना है, तूने क्या करना है बेटा आगे, तूने फैक्ट्री जाना है? मैंने कहा हाँ मैंने जाना है। मतलब उन्होंने डिसीजन दे दिया अपना उसी टाइम। एक तो ना कहते हैं ना जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, उनका एक डील जरूर होता है। मैं अपनी एक वीडियो में भी रिसेंटली बोला था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो इसीलिए कि जो काम हमने सोच लिया है वो आज करें तभी अच्छा है, कल पे मत डिले डालें। तो उनको भी यही था, मेरे बोलने की देरी है, उन्होंने साथ ही में ऑफिस में कॉल कर दिया, इसका कैबिल रेडी करो। वो अपने आर से बोल गए। और आफ्टर ऑफ दैट, मतलब अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ होगी 1 वीक के अंदर। और वो 4th डे पे बोल गए थे कि ये आएगी। तो ये सब उनका ही है, ये हमारी फैमिली में शुरू से ही है। कभी भी किसी भी डॉटर इन लॉ के साथ ऐसा नहीं है कि उसको पीछे कर देंगे। कई फैमिलीज होती हैं, मेरे केस में मैंने बहुत का सुना है, बहुत अपने रिलेटिव नॉन में बहुत का सुना है कि उन्होंने साथ नहीं दिया, उसको अकेला कर दिया। तो कई फैमिलीज ऐसी होती हैं। लेकिन टचवुड एंड बहुत ग्रेटफुल हूँ गॉड की कि उन्होंने मुझे ऐसी फैमिली दी है कि जिससे मेरे को ख्याल भी नहीं आता कि मुझे यहाँ पे इनको छोड़ के कहीं और जाना है। मुझे मुझे 3 to 4 months के बाद ही लोग बोलने लग गए थे, मतलब बहुत करीबी लोग भी, कि तुमने कभी, और फ्रेंड सर्कल में भी कईयों ने बोला कि भाभी आपके बच्चे छोटे हैं, आपने कभी मतलब सोचा नहीं कि सेकंड मैरिज का। मैंने कहा आज आपने ये बात कर दी है, अगले दिन कभी बात ना करना, आगे से कभी बात ना करना इस बारे में। कहते क्यों? मैंने कहा मेरा खुद का मन नहीं है इस फैमिली को छोड़ने का। और मोस्ट ऑफ ऑल कि अभी मेरे मदर इन लॉ अकेले हैं और उनको जितना फेथ मेरे पे है, फेथ के साथ साथ उनको ये है कि ये मेरा बेटा है, तो मैं उनको कैसे छोड़ के चली जाऊं? तो मैंने अपने रिलेटिव में भी सबको बोल दिया था। क्योंकि एक तो मेरी मदर के साथ भी ऐसा हुआ, मेरी मदर ने भी तो फुल जर्नी ऐसे ही निकाली है। चलो हम मानते हैं कि उस टाइम पे ये चीजें ख्याल नहीं ज्यादा आते थे, लोग इतना नहीं सोचते थे कि सेकंड मैरिज के लिए एक लेडी के लिए ना वो एक शॉकिंग शॉर्ट छोटे प्लेसेस में ये ज्यादा होता था। सोचने लग जाते थे कि हाँ कैसे करेंगे, ये कैसे करेगी। और लेडी भी खुद सोचती थी, मेरे मेरे खुद के 2-3 बच्चे हैं, मैं किसी और फैमिली में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। वो खुद भी सोचती थी, क्योंकि जिसके साथ भी मैरिज करेगी वो भी मैरिड ही होगा, वो भी मैरिड ही होगा, उसके साथ कैसे वो कर पाएगी ना सेटिंग। तो अब पहले तो बहुत सोच, अब तो और ज्यादा थोड़ा कहता है एडवांस सोच हो चुकी है लोगों की। अब तो अगर देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, सबके साथ लाइफ तो एक, हम जैसे मैं बोलती हूँ लाइफ एक है, तो अगर एक साथ ही होना जरूरी है। बट मेरे लिए अगर मैं बोलूं, अगर मुझे फुल लाइफ ऐसा है तो मैं अपनी फुल लाइफ इसी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दैट्स अमेजिंग, सही में गूज बम्स ला दिया आज आपने डॉक्टर पल्लवी। एक तो आई कैन से यू आर ब्लेस्ड टू हैव दोज काइंड ऑफ इन लॉज। एंड यू नो ये आपके जो इन लॉज है एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कम्युनिटी में, बाहर सोसाइटी में, कि इन लॉज ऐसे होने चाहिए। मतलब हर लड़की खुशी से जाएगी अपने मायके से और रहेगी, वापस आएगी भी नहीं। अगर ऐसे इन लॉज हैं तो भाई मायके वालों को ट्रबल भी नहीं रहेगी, चलो मेरी बेटी चली गई। आयशा, मैं अभी क्या बताऊं, मैं मेरे को अपनी मतलब मदर इन लॉ के साथ इतना ज्यादा उनकी मतलब एक साथ ऐसा है कि मैंने आज तक अपने बच्चों के स्कूल के टिफिन नहीं बनाए। मतलब मम्मा बनाते हैं। वो मुझे कहते हैं तू बस उठ जा, तू तैयार कर दे इनको, मैं हूं, बाकी मैं देख लूंगी। हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। So happy to hear that. And besides that, आपने acknowledge भी किया ये प्यार जो आपको मिल रहा है, and आप उनको Yes. repay भी उसी तरफ से कर रहे हैं, आप भी इक्वली उतना प्यार कर रहे हैं। It's not one तरफा, आपको वहां से मिला है, आप वो accept कर रही हैं, acknowledge कर रही हैं, आप उनको दे भी रही हैं। That is what makes you stand out, and that is what makes you love you even more. And I'm so happy that you came here, you shared your journey, you shared कि ऐसा भी होता है। Because for me, like, मेरे को हर एक चीज वाव फैक्टर में ही है। बिकॉज इन लॉज ऐसे होना, आपका ऐसा होना, ये मैंने पहली दफा सुना है। ये पूरी जर्नी जो है ना, ये यूनिक है मेरे लिए, एंड देयर सो मच फॉर मी टू लर्न। I'm sure we are going to be in laws in future, maybe there's so much for us to know. अभी से हम प्रेप कर सकते हैं कि ये सारी चीजें, because from the place where I come from, I don't see this happening. Both the sides, it's not like that for us. So yeah, maybe I come from a very small place, and वहां पे ये सारी सोच नहीं है। वहां पे लड़की को नहीं पढ़ाना होता है, ये सारी चीजें होती है।
It's like only for me, my husband is the one who stood for me. And he was like, कराते हैं, जैसे आपके husband वहाँ पे थे. So I can relate उस चीज पे. And उन्होंने पढ़ाया कराया. मेरी शादी के बाद पढ़ाई शुरू हो गई actually. मेरी 12th खत्म हो गई, मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने पढ़ा, उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई. And then I have come this far. And both the side of the families में, मेरे दूर दूर के families तक कोई नहीं है जहां तक मैं खड़ी हूँ, ऐसा कोई लड़की नहीं है अभी तक. And I'm the only one sole person जो ऐसे हैं. So I can imagine कि what you must be feeling right now. You're a true example. पंजाब में I'm sure आप एक role model जैसे treat किया जाता है आपको, and I'm sure you must have influenced lot more women, and इंशाल्लाह आगे भी आपसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा उनको. And thank you so much. I'm just handing over this to the other girls. Girls, if you want to say something, please go ahead. हाँ जी, हाथ उंगली किसके ऊपर वो लोग कर सकते हैं. हाँ, Supriya is the first one. जी जान. Hi, Dr. Pallavi. It was really nice to listen to you. Half of the session was like a flashback for me because my mother lost her brother at a very early age, and he has a wife. He was just married 2 years और उनके 2 साल में 2 बच्चे हो गए थे. So he was मतलब my mommy, she was very young. I think she was hardly 19 or 20 when she was a widow, and she had 2 kids. 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा. So this entire story was a flashback for me. How the relatives and everybody, and he was in a business. So my Nana ji on the very first, second or third day, he told कि बेटा आपको उसका business संभालना है, आपको business करना है. She said कि करना है. They said कि आपको पढ़ाई करनी है, आप आगे पढ़ाई करिए, आपको business करना है, आप आगे business कीजिए, आपको शादी करनी है, आप आगे शादी कीजिए. And she also had the same words that you said कि एक बार मुझे नसीब से ऐसा घर मिला है, अब मैं ये छोड़ के कैसे जाऊं, मुझे नहीं जानना. मेरे दोनों बच्चे हैं यहाँ, ये मेरा घर है, मैं यहीं रह रही हूँ, जितना जो हो पाएगा करूंगी. Whatever she was interested in cosmetics, तो उनको cosmetics का business start कराया. And like you have the guilt, she always had the guilt that I'm not able to spend much time with the kids. The son was not speaking much at that time. Boys are like that generally. They are not very social. They develop a little too late socially. तो वो एक guilt mothers को हमेशा रह जाता है. Maybe I have not given enough time, but ऐसी बात नहीं है. I have seen parents in this COVID time who have both lost their job. The entire time they were with the sons, and still the son had to go to the speech therapy. So please don't take the blame on you, and don't be harsh on yourself कि आपसे कोई कमी रह गई. वो हर एक बच्चे का डेवलपमेंटल स्टेज अलग अलग आती हैं. थोड़ा पहले थोड़ी बाद में, लड़कों में थोड़ी ज्यादा मेहनत हो जाती है सोशल वाले स्किल्स की. आपकी कोई उसमें खामी नहीं है, वो बच्चा आगे अच्छा करेगा. So today you are in that stage जो मैंने देखी थी 20 साल पहले. I want to tell you what happened to that family today. So today that son is in IIT Mumbai. He is the most respectable person ever. वो कब घर का सबसे छोटे लड़के से सबसे बड़ा फादर टाइप बन गया हमको पता ही नहीं चला. He is still very responsible, very respectable for all the women. The respect that he has for women, if I say I want to do something, दीदी आप करो, आगे का देखूंगा मैं. He has become that kind of person. उसको रात में नींद ना आए अगर मैं घर पे वापस ना. I stayed with them for 5 years for my graduation. और वो उस वक्त किस उम्र का होगा, वो नर्सरी जाता था. अभी जब मेरी बच्ची की एज उस एज का था, बाहर बैठा मिलता था मुझे, क्योंकि सनसेट जल्दी हो जाता है लखनऊ में. तो ही यूज्ड टू बी वरीड कि रात हो गई, दीदी क्यों नहीं आई घर पे. जिज्जी ही कॉल्स में, जिज्जी आप घर क्यों नहीं आए. सो ही यूज्ड टू बी सो, वो इतना जल्दी बड़ा हो रहा था. वी यूज्ड टू फील बैड दैट दिस इज नॉट योर एज टू वरी, हु हैज कम होम हु इज नॉट. बट उसकी वजह से जो उस यंग एज में उसने देखा, एंड मामी जी वाज वेरी स्केयर्ड कि इन लोगों का क्या होगा. टुडे आई कैन से दैट शी इज अ वेरी प्राउड मदर कि इन लोगों ने उस एज में देख लिया कि क्या सही होता है, क्या गलत होता है, वुमेन को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एंड कितनी काबिलियत एक वुमेन में होती है. दैट टुडे द डॉटर इज working with one of the leading firms in Lucknow, and the son is studying in IIT Mumbai, very well settled, and my mommy ji is happily running her business, and Nana ji is also, Nana ji ने सारा संभाला, आज भी संभाल रहे हैं. उन्होंने बोला बच्चों के फीस का पैसा मुझे भरना है, मैं भरूंगा. जहां बच्चे पढ़ना चाहेंगे मैं पढ़ाऊंगा. आज तक वो फीस का IIT का पैसा नाना जी ही भर रहे हैं, उसके हॉस्टल का पैसा नाना जी ही भर रहे हैं. So to have that kind of in-laws and family, what it means I know, because there was a lot of village restrictions that what clothes she should wear and she should not wear. वो सब कुछ मनाना जी खड़े थे. He was like, कोई बोले तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें परफ्यूम पसंद है. आज तक हर एनिवर्सरी में उनके वो परफ्यूम गिफ्ट करते हैं नाना जी, कि लेके वो आता था, वो नहीं ला रहा, मैं लेके आता हूँ. And the aura that he creates,
he'll be whistling, he'll be singing, and he'll get a perfume. कभी कहीं गए तो ज्वेलरी ले गए, कहीं कुछ ले गए, तो वो इक्वल दोनों बहुओं को गिफ्ट देते रहे. एंड द कंपैरिजन दैट यू हैव कि भाभी के बच्चों को लगता है, मतलब हमारे बच्चों को उनको देख के लगता है कि उनके तो मदर आ रही हैं, फादर आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे. So that was also there. But I must say that over the time, you will see victorious kids, you will see leaders, you are making leaders, and you know it or you don't, but you are setting an example that is extraordinary. तो आप गिल्ट ना रखें कोई कि आप कुछ कमी कर रहे हैं. आपने जो स्टैंडर्ड्स अभी बनाए और आप जो proudly you're walking with your chin up, that is going to pave way for those kids forever. I see those kids and I feel proud कि मेरे बच्चे 1% ऐसी हो जाए जैसे उनके दोनों बच्चे हैं. It doesn't matter that they have father or not. They have a mother who's a mother and a father. They give them gifts, give her gifts on Father's Day, on Mother's Day. And she is a proud mother who's carrying herself as a father also. So I think you should not have any doubt in your mind. You are doing great. Go ahead. We are all here to support you as much as we can. Please brief us about your businesses and how and where we can help you with. And don't have a doubt, I have seen this entire journey exactly the same. Being a North Indian, the pressure that comes in and the life that a lady has after that, it is very, now the things that have happened with her, but because the family has always stood, किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उनको कुछ बोल पाए. उनकी इच्छा है, उनकी आज इच्छा हो जाए मुझे नहीं करनी जॉब बिजनेस, मुझे आज पढ़ाई करनी है, वो आज पढ़ाई करना शुरू कर सकती हैं. So that vision is hers, the vision is yours. आपको देखना है कि आपको आपकी लाइफ के लिए अच्छा क्या करना है. बस आप बिल्कुल गिल्ट ना रखें कि बच्चों को भी कुछ कमी हो रही है. हर मदर कमी ही ढूंढती है अपने अंदर. वी हैव दैट गिल्ट फैक्टर. आप घर पे होते हैं तो आपको लगता है मे बी वी आर नॉट एडवांस्ड इनफ टू रेज आवर किड्स. आप बाहर जाते हैं आपको लगता है मे बी वी आर नॉट गिविंग इनफ टाइम फॉर आवर किड्स. तो वो गिल्ट तो एक मदर के साथ, मदरहुड के साथ आ ही जाता है. बट आप उसका वो मत रखिएगा कि उसकी वजह से आप बच्चों को कुछ बिगाड़ रही हैं, उनका कुछ कम हो रहा है. You are doing absolutely perfect and we are all so proud of you. Congratulations for being the mother and the father all in one and giving us the life goals, and all the best for all your journey. And we are here to watch and applaud. Wow, Thank you. that's amazing. Or anybody else wants to wave say something to Dr. Pallavi, please. We can wind up in another 5-7 minutes. Hanji Alia. जान आप म्यूट में हो. मैं लिप रीडिंग नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली. मारेंगे आलिया Out मुझे. हो गई थी मैं, हाँ क्या भूल I गई. know. आई एम म्यूट. वही बता रही थी कि पल्लवी की अपनी जबानी में जो हमने उनकी जर्नी के बारे में सुना है, she has literally left everyone I think spellbound, and we are really मतलब इतने स्ट्रॉन्ग लेडीज होते हैं तो यू ऑल मेक अस आल्सो प्राउड कि वुमन में इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इन स्पाइट ऑफ इफ somebody we don't have any say support system, also we carve a niche somewhere for ourselves and for our children. और जब एक औरत की बोलो या लेडी की तब्दीली माँ में जब बन जाती है तो माँ के जैसी स्ट्रॉन्ग तो कोई औरत हो नहीं सकती, मैं बोलूंगी. और पल्लवी जो आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रही थी, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ यू आर. सो हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह आपको ऐसे ही रखे, हमेशा खुश आमीन. रखे, आपके बच्चों की खुशियां दिखाए, और यू बी ऑल हैप्पी एज अ वेरी जॉइंट लविंग फैमिली. आमीन. आमीन आमीन. जी भावना. एक्चुअली सुप्रिया ने काफी कुछ समराइज कर दिया. हमेशा करती है ये पूरा. हाँ, सबके actually हिस्से का ये इसलिए बोल ना देगी. पहले सुप्रिया को ही बोलना चाहिए हमेशा, because she summarized it so well. And yeah, hats off to Pallavi, because ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है स्पाउस का चले जाना, वो भी इतनी यंग एज में बच्चों के साथ. एंड no one else can imagine what a woman or even a man goes through अगर ऐसा कुछ हो जाता है. एंड इन लॉ सपोर्टिव हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अपने पीसेस को गैदर करके वापस खड़े होना. I have seen that this in two of my bhabis during COVID when I lost two of my brothers and their kids were very small. And मेरी एक भाभी है जिनका बेटा मेरे भाई की डेथ के तीसरे दिन बीमार पड़ गया था, and वो सब भूल के उसको हॉस्पिटल लेके गई थी अकेली, मतलब मेरे नेफ्यू के साथ. एंड पीपल वर सेइंग कि ऐसा है, ये अकेली जा रही है ऐसा. तो
वो सब सुन के पीसेस गैदर करके अपने आप को खड़ा करना, बच्चों का सोचना, सबका सोचना, इट्स नॉट इजी. सो हैट्स ऑफ डॉक्टर पल्लवी. आई मीन यू आर समवन हु गिव्स अस स्ट्रेंथ टू के यार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मैटर नहीं करती. हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके जो दुखी होते हैं वो मैटर नहीं करती इवेंचुअली. Absolutely, absolutely. So clap for her. I would say big claps for her. मैं Thank you, फोन रख thank you, के Bhavna. clap कर रही हूँ. She deserves that. She deserves that. स्टैंडिंग deserve ओवेशन भी that. दे सकते हैं Stand, आयशा yes. हम उनको. Actually, No, actually no, इनको देना Pallavi, चाहिए. hats off and amazing. Amazing. That's true. You know, भावना ये बात तुमने सही बताई, जहाँ पे वो कितना भी सपोर्ट हो जाए बट अंदर से you have to be strong ना. तुम्हारा इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम निकल गया है, तुम कैसे उसके बाद ये करोगी? वो पीसेस जोड़ना बहुत ये होता है, टाइम लगता बहुत है. मुश्किल. हाँ, ऑफ कोर्स हेल्प होता है जब आपके आजू बाजू लोग सपोर्टिव हैं, बट आप एज अ Exactly. पर्सन आप खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. एंड दैट इज वेल सेड भावना. एंड वो वहां पे स्टैंड करती है. एंड जिसका भी वही. लाइफ में ऐसे सेटबैक्स आते हैं ना, उसके बाद जो वो खड़े हैं, my god, those girls, like even most of our girls over here, I have known most of their journeys. And मेरे ऐसा लाइफ में जो भी देखे, आप ये बातें कर रहे हैं. मैंने कईयों से तो ये भी सुना, मतलब डायरेक्टली मुंह पे नहीं कोई बोलता, अगर कोई मुंह पे बोले तो जवाब देना हमें भी आता है ना. तो Exactly. कईयों से मैंने भी मुंह पे नहीं सुना, मतलब कईयों से ऐसे सुना कि इसको तो ये तो कर सकती थी, ऐसे ये स्ट्रांग हो सकती थी बिकॉज इसने अपनी मदर को ऐसा देखा हुआ है. क्योंकि इसके फादर की भी बहुत अर्लियर डेथ होगी, इसकी मदर ने इनको संभाला, तो इसकी मदर ने इसमें ऐसा, मतलब क्यों मेरी मदर ने सब कुछ मुझ में डाल दिया, उनको पता था कि मेरे साथ भी ऐसा होना है. करेक्ट है. लोगों का कुछ नहीं बोल सकते. मैं खुद दिल्ली की हूँ, पंजाब से हूँ. आई वेरी वेल नो डॉक्टर पल्लवी. मेरी एक बहुत दूर की कजिन भाभी है जिनका 2 साल का बेटा है. उसके इन लॉज आर नॉट सपोर्टिव. वो लड़की सुबह से शाम तक अपने बेटे को संभालती है, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक. शी इज वर्किंग विथ IBM नाइट शिफ्ट्स. उसके साथ साथ वो अपने आप को अपग्रेड कर रही है. I see her journey and I feel so amazed कि जब मतलब एक लेडी के लिए और एक माँ के लिए nothing is impossible. अपने पीसेस गैदर करके बिना सपोर्ट के साथ भी वो चीज करना itself is admirable. एब्सोल्युटली. और ये हम लोग इस टाइम पे रह के ये चीज कह रहे हैं कि मतलब हम लोग अपनी कम्युनिटी सेंटर में, जैसे हम अपनी यहाँ पे जुड़े हैं, हम लेडीज हैं सारी. इवन अगर एक भी जेंट्स आके ऐसे प्रेज करे तो और अच्छा लगता है. ये Correct. खुद को एक होता है, एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल रहती है खुद के लिए कि हाँ कोई और जेंट्स कम्युनिटी भी हमें ऐसे करे. लेकिन सबकी सोच ऐसी नहीं होती, मतलब मैं Absolutely. सबकी सोच ऐसी नहीं होती. और जो काम हम कर रहे हैं, जैसे जो चीज हमारे साथ हुई है, हमारे स्पाउस की डेथ हो गई, जो चीज हमारे साथ हुई है, अगर ऐसा कुछ किसी मेल के साथ होता तो मेल कभी भी रह नहीं सकता. मेल हमेशा दूसरी मैरिज करेगा ही करेगा. तो मेरा उन सबसे यही रहता है कि मतलब चाहे फैमिलीज हैं, तो वो फैमिली से भी मेरा यही सवाल है, या उन सब लोगों से भी यही सवाल रहता है कि अगर तुम मेल के लिए तुम्हारी अलग धारणाएं और फीमेल्स के लिए अलग है. हम लोग कह रहे हैं हम 21 सेंचुरी में हैं, तो 21 सेंचुरी में होने के बावजूद भी हमारी ऐसी सोच है कि हम अभी भी लड़कियों के लिए अलग चीजें चलती हैं और लड़कों के लिए अलग चीजें चलती हैं. ट्रू. ये फैक्ट है. ये दोनों के लिए अलग अलग चीजें चल रही हैं अभी भी. हमारी सोच, हम वैसे बोल देते हैं कि यस आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए लड़कियों को, और जिसकी भी लड़की होती है वो जरूर कहती है कि उसको मैं इंडिपेंडेंट बनाऊं और उसको अच्छे से एजुकेट करूं, ताकि इनकेस कुछ भी नहीं पता आगे टाइम का क्या होना है क्या नहीं होना है ना, तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से करूं, अच्छे से. और उसकी शादी का क्या, पहले तो बहुत जल्दी शादी कर देते थे, आजकल लड़कियों की भी शादी जल्दी नहीं करवाते, इसीलिए कि पहले वो जो चाहती है पढ़ना, अपना जितनी देर तक पढ़ना चाहती है, जितना एजुकेशन हासिल करना चाहती है, इसको करवाना जरूरी है. आजकल वो चीजें फादर मदर पेरेंट्स बहुत देखने लगे हैं. होना भी चाहिए, वो ही है ना. तो हमारी ये सोच रहती है, बट जब हम किसी की लड़की को लेके आते हैं, अपनी डॉटर इन लॉ बनाते हैं किसी की लड़की को, और ऐसा कुछ हो जाए और बाद में हम उनको ही नहीं पूछते,
ये राइट। बहुत अलग अलग मैटर है, मतलब इसको कहते हैं कि दो तरह के फेसेस होते हैं लोगों के। हाँ हाँ सही बात है, दो तरह के फेसेस हैं लोगों के। खुद के साथ बिगड़ जाए तो हमसे बुरा, मतलब हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो किसी और के साथ हुआ ही नहीं है, और जब दूसरों पे आए तो वो तो ऐसा है। एब्सोल्युटली, ये सही कहा है। और डॉक्टर पल्ली, आप तो अपने अब ये बताया आपने कि हाँ इनकी मम्मी के साथ ऐसा हुआ है इसलिए ये स्ट्रांग बनी है। मैं बोल बस रही हूँ साइंस ही पकड़ लो, हमारे पास जो सुप्रिया है, शी इज अ डॉक्टर हरसेल्फ, शी इज अ डेंटिस्ट। और मेरी बहन को फर्स्ट लड़की हुई थी जो, एंड उसके इनलॉस में से तीसरी वाली बहन को उसके इनलॉस में से बोला हाँ इसको लड़कियां ही होनी थी, इसकी माँ का वोच वर्षा आया वहां से। वो उसकी माँ को 3 बेटियां हुए, तो आई एम दी एल्डेस्ट, 3 बेटा हुए, इसे भी 3 ही बेटा होंगे। और मेरी माँ का नाम बदनाम करके रख दिया था सब जगह वो वही तो लोगों ने। बोल रही हूँ। मैं बोल मेरी माँ का थोड़ी ना है उसके अंदर, क्या कहाँ से आ रहा ये है कि ये चीज दोनों करेंगे। ये बात मेरी मदर के साथ भी थी, क्योंकि मेरी मदर के मतलब उनकी जब मैरिज हुई तो आफ्टर 8 years इतने स्ट्रगल और इतने फेसेस, लोगों के इतने ताने उन टाइम पे सुनने के बाद उनको एक बच्चा हुआ। बट सबको ये था आफ्टर 8 years हुआ है, चाहे लड़की हुई है तब भी ठीक है। लेकिन मेरी सेकंड जो थी वो भी मेरी सिस्टर हुई, मतलब सेकंड भी उनको लड़की हुई, तो सबको ये था ये अपने पीछे पीछे एक और लड़की ले आई, हाँ मतलब सोच देखो। और उसके बाद फिर बेटा हुआ, और जब बेटा हुआ, मतलब मैं अपनी मदर की भी अगर लाइफ को एक्सप्रेस करूँ ना, तो उन्होंने भी कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में। पहले 8 साल बच्चे के लिए तरसते रहे, देन मैं हुई, उसके बाद साथ साथ में ही दूसरा बच्चा हो गया आफ्टर 1.5 year में ही, मतलब एकदम से साथ साथ में ही। और उसके बाद जब भाई मिला, मतलब जब उनका बेटा हुआ, तब उनके हस्बैंड ही उनके साथ रहे। जब मेरी मम्मा 4th month प्रेग्नेंट थी, तब भी मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरे ब्रदर ने क्या देखा, मतलब मैं अगर उनकी लाइफ को भी एक एक्सप्रेस करूँ ना, बट हाँ वो एजुकेट जरूर थे, लेकिन वही बात है कहीं फैमिली साथ नहीं देती। तो मेरी इन लॉ, मतलब मम्मा के इन लॉज फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया। मतलब ये नहीं कि उनको इंडिपेंडेंट बनाए, उनको बोले वो टीचर बन सकते थे, उनको जॉब भी मिला था, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। तुम्हारे बच्चे को कौन देखेगा। मतलब मैं अपनी अगर दादी की बात करूं, तो मेरी दादी मेरे ताई जी के यहाँ पे रहते थे, वो यहाँ पे नहीं आए। मतलब अमृतसर से हम लोग पठानकोट शिफ्ट थे, बट मेरी दादी जिनको साथ चाहिए था उनके पास नहीं आए उस टाइम। मेरी मदर ने अकेले उस टाइम पे अपने तीनों बच्चों को रखा हुआ है। और हम कैसे बोल सकते हैं अपनी मम्मी के ऐसे, इतने जो उन्होंने स्ट्रगल्स किए हैं हमें लेके, कोई भी बच्चे नहीं बोल सकते। हमारे पड़ोसी आके हमारे साथ सोते थे, हमें आज तक याद है। उस टाइम पे जैसे कहते हैं 40 days और 2 months, जो जिनका सी सेक्शन हुआ होता है वो हिलते भी नहीं है। मेरी मदर रात रात जाग के, अब मतलब मेरे भाई के लिए रात रात जागती थी, और साथ में पड़ोसी सोते थे कि हाँ इनको एक सपोर्टिव सिस्टम की जरूरत है। उस टाइम हम ऑन दैट टाइम आई एम जस्ट 5 years old, और मेरी सिस्टर 3 years की थी। तो वो हम उन लोगों को भी कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमें साथ दे, सपोर्ट किया। वेरी ट्रू। होते हैं ना काफी बार हमारे फ्रेंड्स, जैसे हम दुबई में हैं, हम लोग काफी लोग एक्सपेट्स हैं यहाँ पे, हमारी फैमिलीज तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे दोस्त बनाए ना कि वो फैमिली से बढ़ के है। मैं कभी भी किसी को हम्म, कॉल करूँ आ जाएंगे रेडी होके, हाँ तुम्हारा ये है चलो सब साथ में करते हैं, मतलब ऐसा बनाया हम लोगों ने। तो ये आप जो बोल रहे हो ना, ये कि नेबर्स जैसे आपकी फैमिली जैसे थे, फैमिली से बढ़ के, तो यहाँ यस यस। हमारी जो फैमिली, आधी फैमिली आप यहीं पे देख लोगे मेरी, तो ये लोग हैं ऐसे हमने बनाया है, ये लोग मेरी फैमिली है। और ऐसे और कितने लोगों को आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है जो मैं बोलती हूँ फैमिली है, और ये इन लोगों का मैं हमेशा थैंकफुल रहूंगी। काफी टाइम में ये लोगों ने मेरे, शायद इनको भी नहीं पता होगा लेकिन हाउ दे हैव हेल्प, बट दे ईच वन ऑफ देम हैव हेल्प मी इन सम और द अदर वे, एंड मेरे आखिर तक मैं इन लोगों का ना आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड आई कैन रिलेट टू एवरीथिंग यू आर सेइंग डॉक्टर पल्लवी। लेकिन अभी आज मैंने काफी सारी नई चीजें सीखी, लाइक अदर पीपल हैव सेड, इवन सुप्रिया तो आधा मेरे को जो समरी करती है उसमें मेरे को आधा स्टोरी मालूम पड़ता है, किसी और का स्टोरी वो जरूर शेयर करती है उसमें, जिससे मुझे समझ में आता है कि माय गुडनेस, दिस गर्ल आल्सो हैज सीन मोस्ट ऑफ इट, एंड वी हैव सो मेनी स्ट्रॉन्ग पीपल ओवर हियर। एंड आई कांट टेल यू कि मुझे एक्सप्रेस करने वर्ड्स कम हो जाते हैं एट द एंड। हमेशा होता है कि मैं बकबक ज्यादा करती हूँ, मेरा ज्यादा होता है काम बकबक करना, सबको एंटरटेन करना। आई रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स लिटरली व्हेन इट इज दिस मीटिंग, एंड आई एम लाइक आई एम ग्रेटफुल, बस वही लगता है, बिकॉज आई एम लिटरली ग्रेटफुल फॉर यू,
for everyone for being here, because we are again building a community, because I can feel कि अगर हम लोग ना एक दूसरे का स्टोरी सुन के भी इंस्पायर हो सकते हैं, अगर हमारे में इतनी कुवत है और हम एक छोटू सा हेल्प भी करेंगे अपने विमेन कम्युनिटी के लिए, माय गॉड ट्रस्ट में हम कहाँ रहेंगे हम सारे। तो हम लोगों ने वो करनी है, बस मेरा यही है कि वी हैव टू स्टैंड टुगेदर, वी हैव टू हेल्प ईच अदर एंड डू दिस करके। आई थिंक शी इज गॉट लैपटॉप शट डाउन हुआ लगता है मेरे को डॉक्टर पल्लवी का। बट गर्ल्स थैंक यू सो मच, किसी को कुछ बोलना है तो इसी में रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग बोल सकते हैं। एंड I would प्रोबेबली आई विल बी really like शेयरिंग to दिस। know more about her business. You have an idea, or otherwise, please share us the link of her Instagram if she's on Instagram or आई थिंक इट इज बिगर देन whatever. इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे ये लोग का नहीं है नॉर्मली, जो ये होता है ना इंडिया नहीं में तो वैसा it is- yeah, मैं whatever लेती हूँ little डिटेल्स। snippets, yeah, where we can get it and how we can promote it Done, or help it, because done। we have so many of our friends and relatives up in North India. हाँ Can definitely डन डन। मैं pass the पूछती word. हूँ, एज सच मेरे को आइडिया नहीं है, Yeah. आई डोंट थिंक सो दे हैव इंस्टाग्राम। नॉर्मली होता है इन लोगों का, बिकॉज ये बहुत पहले से चल रहा है, सो प्रोबेबली आई डोंट नो कब नॉर्मली उनका नहीं होता होता है, मुझे इंस्टाग्राम का नाम भी नहीं पता था, वो नॉर्मली नहीं होता है। तो she is the normal one। ऐसे ही होता है, यूजुअली people are not on Instagram। ये थोड़ा दुबई कल्चर है कि यहाँ होता है, यहाँ पे but होता है इंडिया इंस्टा, में हाँ सब कुछ का होता है, yeah। दैट इज ट्रू। सो थैंक यू Has गर्ल्स। Dr. Pallavi left? She's हाँ joining back. वही, आई थिंक उनका ना कुछ लैपटॉप का ग्लिच हुआ ऐसा लग रहा है, या चार्जिंग खत्म हो गई होंगी, बेचारे एग्जिट कर Generally, गए। because I don't have long things to tell, but I just wanted to tell her कि एक बड़ा सुंदर सा किशोर कुमार का गाना है, अगर आप सबको पता होगा ये, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। True। सो नो कितनी हाँ। आपको उसको इम्पोर्टेंस देनी है, कितनी आपको नहीं देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम करते हो, वहां से कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा, जहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बात करेंगे कि ये ऐसी है, ये वैसी है, या ऐसे क्यों किया, या वैसे क्यों। और शायद इंडिया में थोड़ा ज्यादा होगा, दुबई में एवरीवन माइंड्स देयर ओन बिजनेस, दे डोंट इंटरवीन सो मच इनटू योर लाइव्स, एंड दे रियली अप्रिशिएट एवरी लिटिल स्मॉल थिंग्स दैट वी डू। So I just wanted to tell Dr. Pallavi that you're doing really well. You're being a good mom. You're being a good sister, mother, daughter. So don't think so much. Overthinking also kills many a times. So अब जैसे आ रहा है वो फ्लो में आप जाओ, लोगों की बातें तो होनी है, उसको आप इतना इम्पोर्टेंस ना दे तो बेहतर है। And all the best for her future. May God bless her with lots of best wishes and good luck to her. आमीन आमीन। थैंक यू, मैंने रिकॉर्ड कर ली वैसे दिया, एंड आई एम गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस। एंड ये तो हमारे इस पे भी है यहाँ पे, आई डोंट नो, यू मस्ट हैव रिसीव्ड सो मेनी पॉजिटिव पीपल, ऑफ कोर्स माशाल्लाह से मेरी कम्युनिटी में भी, बट वी हैव सीन जिनके साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करते हो, अगर यू नो वंस यू डू समथिंग गुड इन योर लाइफ और आप उनसे सपोर्ट की जरूरत मांगते हो, उस वक्त काफी लोग, उस वक्त आपको पता चलता है कि कितने लोग आपके सही में दोस्त हैं और कितने नहीं, बिकॉज वो टाइम होता है जहाँ पे वो आपके साथ नहीं खड़े होते। You know, they don't want you to grow, they will not promote you, they will not talk about you, they will talk all negative stuff, कि जाके उनको पता है कि ये इसको ना यहाँ से भी सपोर्ट मिल सकता है, मैं यहाँ जाके बोल दूंगी इसके बारे में बुरा, ताकि यहाँ से भी नहीं, ये खुद ही गिरते पड़ते खड़ी हो जाएगी। तो ट्रस्ट मी, ऐसे कुछ नहीं होगा, आप अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग विल रखो, आपका सक्सेस बात करता है, यू विल फाइंड दैट, यू नो, ये आपकी सक्सेस आपको आगे लेके जाएगी। और ये तो आई से इवन फॉर माय स्टोरी, एंड आई हैव सीन मेरे काफी लोगों को, यू नो, जिनके इसमें हुआ है ये। सो चिल पिल करो, हम सब साथ में हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं, उनको साथ में लेके चलो, बाकी सबको उनको हम बता देंगे सक्सेसफुल होने के बाद, उनको हमारे स्पीकर सेशन में लाएंगे कि सुनो अभी स्टोरी मेरी। तुम होते हो उस वक्त तो तुम्हारा नाम लेती, अब तुम नहीं हो तो मैं क्या करूँ, आज मैं सक्सेसफुल हो गई, ये लोग थे, मैं इनका नाम ले रही हूँ। ठीक है ना? सो बस विद नहीं दैट आयशा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी। बट ये बहुत ट्रू है। हम लोग जो मतलब गॉड का थैंक करना चाहिए, हम लोग इंडिया से बाहर हैं एक्चुअली जी में। हम लोग के इंडिया में जो Yes. सराउंडिंग, हम लोग के जो यूपी लखनऊ साइड में, मतलब एक हमारी एज के नहीं, बहुत एज के लोग होते हैं, बुजुर्ग से लेकर, तो उनका थॉट बदलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वो लोगों ने वही सुना है, वही सराउंडिंग है, तो वो वही नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। वो नहीं सोचते कि आजकल न्यू जनरेशन क्या सोचती है, क्या उन्हें हेल्प की जरूरत है। सो आई थिंक धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है अपनी सोसाइटी में, बट हाँ, हम लोग को इफेक्ट कम होता है क्योंकि हम लोग दुबई से
दुबई में रहते हैं इंडिया से, तो हम कॉल कट कर सकते हैं या उसको ऑफ कर सकते हैं। बट हाँ, वहां रहकर जैसे पल्लवी ने अपनी स्टोरी बताई, इट्स ब्लेस कि उसके इन-लॉज, उसके सब, इवन ब्रदर इन लॉ भी उसके साथ थे। तो ये एक बहुत बहुत पावरफुल एक बैकग्राउंड होता है लेडी के लिए। हस्बैंड तो चलो होता ही है साथ, बट अगर आपके इन-लॉज या आपकी फैमिली अगर साथ में है ना, तो आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है लाइफ में। ये एक हाँ अकेले चलना और एक 2 लोगों के साथ चलना बहुत, जैसे कहते हैं ना हम लोग को अगर कुछ फ्रैक्चर तो स्टिक लेते हैं हम लोग सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट सिस्टम अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। एंड वी आर थैंकफुल कि चलो हम दुबई में हैं, तो हम थोड़े नेगेटिव से दूर रहते हैं। अदरवाइज अगर हम जरा सी भी चले जाएं फॉर माय माय उसमें मैं अपने बेटे के साथ चली जाऊं, सो मेनी पीपल्स गिव ज्ञान, तुम ये कर लो, थेरेपी कर लो, ये चेक करा लो, बट जो जेनेटिक है, जो जैसा है वो यू नॉट चेंज, दैट्स अ गॉड गिव, आपका बच्चा है या जो भी है आपके अंदर कमी, वो आप नहीं चेंज कर सकते। कुछ कुछ चीजें हैं वो अंडरस्टैंड नहीं करती हैं, लैक ऑफ उनके अंदर कमी है कि वो लोग नहीं इतना सर्च कर पाते या इतना एजुकेशन वहां पर नहीं है जितना कि दुबई में हम लोग को बाहर मिल जाता है। सो दिस इज अ गुड, बट हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मेरे भी हैं कि जिनको नहीं मिला, जिनके अभी लॉस हो गया हस्बैंड का या किसी का कोविड में। बट वही है कि जिसको सपोर्ट मिलता है, समझो भगवान की तरफ से उनको एक तरह से अलग से आशीर्वाद है कि इस तरह की फैमिलीज, इस तरह के इन-लॉज या इस तरह के सब उनको मिले हैं। दोस्त, सो ट्रू। इट्स सही में बहुत मोटिवेशन होता है सुनकर ये सब चीजें। और जो नहीं होता ना, मन करता है कि एटलीस्ट हम अपने जैसे जो हमारा यहाँ ग्रुप है, हम उतना तो कुछ तो अपने अंदर एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट लाए कि हम कुछ उनमें से ज्ञान ले सके और एक दूसरे को सपोर्ट करें यहाँ पर, हाँ जो जी, हम करना चाहिए जो हमें। वेरी ट्रू। ये तो आपने सही बोली है। अगर मैं दुबई में नहीं होती तो आज मैं ये हम्म, नहीं करती। मेरा थिंकिंग लोगों के लिए ये नहीं होता, बिकॉज आई वॉज हम्म, ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई यूज टू हैव हेट्रेड हम्म, फॉर पीपल, मतलब बकायदा नफरत हर बंदे से, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम माई हम्म, पेरेंट्स। सो आई डोंट वांट टू गो देयर। बट देन वो है, वो वहां से मैं जब दुबई आई, आई हैव सीन कि हम्म, एक्चुअली वी आर नॉट सपोज टू थिंक दिस वे, वी आर नॉट सपोज टू रिएक्ट दिस वे। हमने ये करना है, वी आर मेंट टू डू दिस। एंड ऐसे ऐसे करके हम्म, पिछले 8 सालों में आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ सो मच कि मेरा कंपनी का पूरा बिजनेस का मैंने ये भी चेंज किया, पूरा स्ट्रेटेजी चेंज किया। मैंने बोला अभी हम इधर नहीं जा रहे, हमने को अफोर्डेबल हम्म, एजुकेशन की तरफ जाना है, एंड वी हैव टू लीव दिस लाइफ। हम्म, एंड आई हैव सेड टू माई हम्म, एवरीवन, माई एवरी मॉर्निंग मेरे को गालियां पड़ती है घर से, तू क्या कर रही है, तू क्यों कर रही है, यू कैन गेट दिस, तू यहाँ पे क्यों जा रही है, तेरे को क्या मिलेगा, राइट, नाम से क्या करेंगे। मैं बोली मेरे को नाम भी नहीं चाहिए, मेरे से कोई फायदा मंद हो रहा है। मेरे को, मैं बकायदा, मेरे को अगर कोई रेफरेंस भी देता है, मैं बोलती हूँ तुमको पता नहीं है, तुमने इस बच्चे का रेफरेंस दिया है, ये बच्चा जब तक जिंदगी में एक लाइन भी पढ़ेगा ना, या कुछ भी पढ़ेगा, उसका सवाब तुमको आएगा। तुमको पता नहीं, तो 15 दिन में इस बच्चे को पढ़ा रही हो, और वी आर ट्राइंग कि हम क्वालिटी पे, कोई भी टीचर अपनी सर्टिफाइड टीचर से जबरदस्त पढ़ा रही है, उनका क्वालिटी पे हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो अगर एक रेफरेंस भी आता है, तुमने बात की मिसाल भी बोला, जस्ट मेरा नंबर फॉरवर्ड किया, मेरी टीम का फ्लायर भी फॉरवर्ड किया, और वो बच्चा तुम्हारी वजह से आया है हमारे पास, एंड उसको बेनिफिट होता है। आई बिलीव इन कर्मा, इट कम्स बैक लाइक एनीथिंग। And today where I stand, it's all because of karma, all because of the positive people I have in my life and the blessings. Because अगर आज के दिन मेरे लिए कोई रो के दुआ करता है, मुझे उससे बड़ा ब्लेसिंग कुछ नहीं है। मेरे को अगर काबा शरीफ के पास, मक्का, द होली प्लेस, सऊदी अरेबिया में, वहां भी मेरे स्टूडेंट और उसकी मम्मी ने मेरे को अभी भी ऐसे किया, आई जस्ट प्रेड फॉर यू दिस 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 दिस। मेरे को रोंगटे खड़े हो गए, मेरे लिए ऐसे किया है। कभी कोई रो के मेरे को ऑडियो भेजता है कि आपकी वजह से मेरा ऐसा हुआ है, एंड आई एम लाइक, मेरे को और क्या चाहिए लाइफ में, आई एम गुड, आई कैन रिटायर टुडे। मेरे को लिटरली आई एम सेइंग, सक्सेस तो जो डेफिनेशन है सबका अलग है, बट आई से आई एम वेरी सक्सेसफुल टुडे। आज के दिन भी मैं रिटायर हो जाऊंगी, इफ समथिंग हैपेंस टुडे, आई एम ओके, बिकॉज आई गॉट एवरीथिंग दैट आई वांट फ्रॉम एवरीवन। बट हाँ, अभी बड़ा ग्रुप को जाना है मेरा, वो जब तक जिंदा है तब तक कर सकते हैं, बट ये है। सो बीइंग हियर इन यूएई, आई शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज आई गॉट पीपल, मे बी एक्सपेक्ट्स होने की वजह से हमको वो लाइफ का मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है हमारा यहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी कि हमको मिला है। इट्स नॉट दैट कि हमारे इंडिया में नहीं है, बट सराउंडिंग मेरी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे हम किसी को सपोर्ट करें। अगर नेबर्स भी कुछ अच्छा करेंगे, तो वी आर टोल्ड कि वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू देम, वी आर नॉट सपोज टू डू दिस टू देम, वो ऐसा नहीं, वाला टॉक्सिक एनवायरनमेंट पता है। है मेरी फैमिली को हमेशा मुझसे प्रॉब्लम रहता है कि आपको कोई भी, आपका थोड़ा सा कुछ महीने में आपकी कोई फ्रेंड बनी, उसको कोई प्रॉब्लम है, आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, अपनी फैमिली को भूल के 24 आवर्स उसके खड़े रहते हो डोर के बाहर,
आप इस टाइप के हो, और कल जब हमें जरूरत पड़ी तो हमको किसी ने पूछा भी नहीं। माई फैमिली ऑलवेज लाइक दिस, तुम ऐसी क्यों हो, ऐसे कि मेरे को, मैं अगर मैं गाड़ी भी चला रही हूँ ना, मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अरे इस बंदे को मेरी, या मैं ही पार्क करके उससे पूछती हूँ, आर यू ओके, चाहे वो सेल्समैन हो या तलाबात हो, जूम हो, कि भैया तुम्हें पानी, आई एम काइंड लाइक पीपल, कि कोई मुझे पूछे ना पूछे, ठीक है, ऊपर भगवान है, जब जरूरत होगी तो हर कोई ना कोई आ जाएगा। या बट मेरी मेरी फैमिली या मेरे हमेशा रहता है कि यार तुम तो चली जाती हो अपनी, अपने बेटे को भी छोड़ के, जबकि उसको 24 आवर्स जॉब चाहिए, तुम ज्यादा समझती हो, लेकिन मेरे को पता नहीं, मैं इस टाइप की बंदी हूँ कि मतलब मेरे को लगता है कि मेरे से जितना किसी की हेल्प हो सकती है, एक जिंदगी है, जैसे अभी पल्लवी ने बोला दोबारा नहीं मिलेगी, कर दो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, मेरा थोड़ा टाइम जा रहा है, ठीक है, मैं एक एक दिन नहीं देखूंगी अपनी फैमिली को, बट उसकी अगर हेल्प हो जाती है तो शायद वो दुआओं में मुझे याद रखे, नहीं भी रखे तो कम से कम नाम में याद रखे कि हाँ, एक बंदी खड़ी थी बाहर, या कोई भी, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे को तो इसलिए पता है, मुझे दुख भी ज्यादा होता है, ठोकर भी ज्यादा मिलती है, कि कोई मतलब जब आप नहीं, it is coming back to you, trust me. And you know, another thing which I've seen in your videos, you make people laugh. It's not easy. So even या किसी के इट्स नॉट चेहरे पे, इजी। मुझे सबसे बड़ा ये लगता है मेरे अकॉर्डिंगली कि ये बड़ी ब्लेसिंग होती है, नियामत है, गिफ्ट है कि आप किसी के चेहरे पे मुस्कान लाओ। आपकी वजह से किसी एक बंदे के इसमें भी मुस्कान आ जाती है, भले कुछ बोला ही नहीं है, आपने स्माइल किया, सामने वाले ने स्माइल राइट, किया, बस राइट। हम डन, मैंने गिफ्ट दे दिया आज तुमको, खत्म। या सो नहीं, यस, मेरे मेरे बहुत से ज्यादा सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आपका लॉन्ग वीडियो तो इज टोटली डिफरेंट, लगता ही नहीं कि आपके अंदर ये छोटा वाला भी एक नॉटी बच्चा घर में बैठा हुआ है, ऐसे कि हाँ मेरा ऐसे ही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि बस हर पल खुशी का, अगर आप किसी को एक स्माइल दे सकते हो ना, वो दो। कभी कभी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्या नॉटी वाली तुम मीमीज बनाती है, मैं कि यार कभी भी ये मतलब मेरे सामने आई, मेरे को अच्छा लगा, किसी के स्माइल आई तो मैंने बना दिया, उस पर शॉर्ट वीडियो बना अमेजिंग, दिया। तो करते रहना इस बस। टोटली मेरे तो दोनों वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, एक ज्ञान के और एक लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं, हाँ, इसीलिए लोग दोनों मुझे कहते दोनों हैं कि बढ़िया क्या। है। हाँ, एंड आप बनाते रहना प्लीज, आपको हमारा सपोर्ट है, एंड इंशाल्लाह आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिले। एंड वी थैंक यू। हैव डॉक्टर पल्लवी अगेन। डॉक्टर पल्लवी, मिस दिया ने आपके लिए कुछ बातें बोली थी जो मैंने रिकॉर्ड करी है, मैं आपको भेज दूंगी वैसे, बट वी डिड मिस यू। तो इन द मीन वाइल बाकी लड़की अपना जर्नी शेयर कर रही थी, बस आई वांटेड टू से थैंक यू बिफोर वाइंडिंग अप। मुझे था कि मैं बंद नहीं करूं, मैं आपको देख के ही उसके बाद में बाय बोल दूं। So thank you so much. I understand technical glitch हुई है आपके end पे, so which is okay. But we have heard most of your story, and we are so happy कि आप वापस आई हैं, and we can have a nice thank you and a bye together. Yeah. यस 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 आयशा, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपसे बात करके और सबसे मिलके स्पेशली। और मैं अपने काम के बारे में भी बताना चाहूंगी। मैं रिसेंटली एक नया मतलब खुद का एक नया टैगलाइन कह लीजिए, यहाँ असेसरीज लाइन में, हेयर असेसरी में अपने ब्रदर के साथ एक नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही हूँ, जो कि मैं आपको इसका लिंक जरूर शेयर करूंगी। वो अभी मैंने ऑनलाइन पेज पे अपना डाला नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी हमारा जो है वो अभी मार्केटिंग हो रही है, अपने ब्रांड की मार्केटिंग हो रही है, दैट इज फॉर बियॉन्ड क्रिएशन, जिसमें हम लोग हेयर एसेसरी से रिलेटेड सारी तरह की एसेसरीज बनाएंगे। हेयर बच्चों से लेके बड़ों तक हेयर क्लिप्स, और जैसे हम एसेसरीज में किस तरह से क्रिस्टल एसेसरीज लेके आते हैं, या सब तरह के फ्लावर्स, ये सब उसमें आएगा। तो मैं उसकी पिक्चर्स और वीडियोस जरूर शेयर करूंगी, और उस पे इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे डालती रहूंगी। तो आई होप सारे उसको लाइक करें, और आगे जरूर उसको मेरे जो चैनल होगा या उससे लिंक्स होंगे उनको जरूर अपने में ज्वाइन करें। इंशाल्लाह। वैसे सुप्रिया पूछ भी रही थी, बट मुझे डाउट है, योगिता कलेक्शन का जो है उसका कोई इंस्टा पेज नहीं है ना? है उसका भी इंस्टा नो पेज? नो, योगिता कलेक्शन का कोई इंस्टा पेज नहीं है। ये एक एक्सपोर्ट बिजनेस ही है। एक्सपोर्ट इन द सेंस, जैसे हम लोग बड़े ब्रांड्स लेके आते हैं, लक्स ब्रांड है, रूपा है, हम लोग हमारे इनके साथ टाई अप हैं, और हम लोग इनका ही मतलब जो जिसको हम लोग कहते हैं मटेरियल है, वो हम लोग इनका मटेरियल ही बनाते हैं। ओके, दैट्स हमारे अमेजिंग। अंदर मेन जो है इसका ये क्या है, डाइंग बिजनेस। डाइंग बिजनेस इन द सेंस ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक्स, जिसमें हम लोग थर्मल, पीसी, कॉटन, हर एक तरह के फैब्रिक्स आते हैं। इट नॉट एक शॉर्ट, मतलब जैसे हम लोग टी शर्ट का पीस लेते हैं वो एक छोटा पीस होता है, लेकिन नहीं, ये मशीनरी बड़ी होती है, जिसमें हम लोग 100-100 किलो के रोल डालते हैं। तो वो इकट्ठे एक साथ मतलब
कलर होते हैं, जैसे हम लोग दुपट्टे डाइंग करवाने जाते थे ना, तो वो मशीनरी तरह की जिसमें वो इकट्ठे डाइंग होते हैं। ओके। एक प्रोसेस है, ऐसे टीम पूरी बनी हुई है जो कि हम लोगों ने 4 पार्टीशन में डिवाइड करी हुई है कि किस तरह से हर एक को एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है, हर एक का एक एक मैनेजर हेड बनाया हुआ है, तो उन सब मैनेज करना, दैट इज अ ड्यूटी ऑफ माइन एंड माय ब्रदर इन लॉ। तो ही ये चीज देख रहे हैं, और डीलिंग है, आउटर डीलिंग वो सारी ब्रदर इन लॉ करते हैं, और जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो सारा मैं करती अमेजिंग अमेजिंग, मोर पावर टू यू मिस पल्लवी। अब प्लीज हमें नया जो आपका लाइन है, वेंचर है, उसका लिंक्स वगैरह भेज देना, एंड इंशाल्लाह वी विल यूज इट। आपको वैसे लोगों ने चैट बॉक्स में भी भेजा था काफी सारी तारीफें, मैं इसका पिक्चर ले रही हूँ और आपको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, तो प्लीज आप चेक कर लेना, ठीक है? And that would be nice. So thank you so much, everybody. Thank you so much, Dr. Pallavi. And rest of you have a lovely day, evening, जो भी। मेरा तो आज पार्टी होने वाला है, मैं पार्टी करने वाली हूँ। तुम लोग पता नहीं क्या करोगे आज। Enjoy the evening. आ जाओ तुम लोग, अगर फारिग हो तो आ जाओ इस तरफ, हम लोग सारे मिलके पार्टी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम लोग जल्दी। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी ऑन 20th, आई गेस। आप लोगों को हम डिटेल्स वगैरह भेज देंगे, एंड वी विल मीट देन। ओके, दैट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, सी या। बाय।